good morning students. We are continuing with the last topic, CSS. In last session, what all we have seen is CSS and the types of CSS. So there are how many types of CSS? 3 types. Which are they? Inline, internal and external. What is the difference in all the 3? Which one is this? So this is inline. The style attribute is mentioned in the opening tag for H1, correct? This is called as inline style. Whatever the style that you are mentioning is applied to this header. Now इसका effect क्या होता है? So Hindi is okay, right? So इसका effect क्या होता है? When we are applying the inline style, the specific element will get the style. But वो सिर्फ उस specific element को ही होगा. If I am not mentioning it for the second header, line number 26 पे जो H1 है, if I don't mention it here, तो ये effect सिर्फ और सिर्फ first H1 के लिए होगा. So we have to repeat it, and repetition might lead to errors. We might write some different CSS, हम कुछ अलग CSS लिख सकते हैं, and therefore to maintain the uniformity, we have seen कि second type use किया जाता है, that is internal CSS. In your head tag, we have seen the style. ये एक tag है within which we mention the styles to be applied. तो आप यहाँ ये styles यहाँ mention करें. For H1 tag or for P tag, we want a specific text color. So this is what is a inline, internal CSS is. Do we have any disadvantage here? Inline CSS का कुछ disadvantage है internal CSS का? Yes, we need to repeat it every time. We need to repeat it for every web page. For a project, एक project में हमारे कितने pages हो गए? बहुत सारे pages हो गए, 40, 50 और maybe more than that. तो जब इतने सारे pages हमारे पास है, in that case, it is really tough to repeat the same style. And that to repetition is okay. But अगर उसमें changes आ गए तो हर एक पेज में जाके मुझे उसका स्टाइल चेंज करना होगा. So this will be a unnecessary wastage of my own time. So as a developer, we should always go for the external CSS. Entire project के लिए आपको uniformity maintain करना है, that is required. And for that uniformity, we would prefer, हम लोग हमेशा external CSS के पास ही जाएंगे. Using this external CSS, we are defining the style directly. For every element, we are defining it here. So for H1, H2 and H3, we have mentioned specific style. Now ये external file है, इसका effect I want it in the HTML files, and that is why we need to link these two files. So we have a link tag here, जहाँ पे हम mention करते हैं REL style sheet. So we are linking a style sheet, that is what we are indicating here. href is a reference of your CSS file. तो यहाँ पे आपको relative path mention करना होता है. ये 3 types हमने last time देखे थे. In the project, always it is recommended कि हम लोग external CSS ही use करें. Now there is always a possibility, ऐसा हो सकता है कि हमारे project में maybe for uniformity, every page has a H1 color as aqua, H2 color as red. But for a specific page, मेरा requirement है कि यहाँ पे H1 या H2 का color different होना चाहिए throughout this page, या फिर maybe for some specific tags. तो फिर क्या करें? हमेशा internal ही use करें या inline ही use करना चाहिए? What would be your preference? मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मेरे पास 2 HTML है, ये मेरे प्रोजेक्ट के दोनों HTML है, इन विच फॉर अ पर्टिकुलर HTML मुझे एक्सटर्नल CSS का इफेक्ट कुछ टैग के लिए नहीं चाहिए. फॉर फ्यू एलिमेंट्स आई डोंट वांट दैट इफेक्ट. सो अगर कुछ P टैग आपने लिखा है एंड फॉर दैट यहाँ पे आपने कुछ स्टाइल मेंशन भी किया है, वांट दैट इफेक्ट. सो P टैग के लिए we are mentioning the text color
as blue. So I want this effect. तो यहाँ पे जितना भी स्टाइल आपने मेंशन किया है, most of the style I want it in demo2.html, but not all. So कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे मुझे मेरा यूनिक स्टाइल फॉर दिस ओनली सिंगल पेज आई वांट इट. क्वेश्चन इज क्लियर? तो ये कैसे कर सकते हैं आप? मुझे एक्सटर्नल स्टाइल शीट तो लिंक करना ही है. आई हैव टू लिंक दिस स्टाइल शीट बिकॉज बाकी जो CSS मैंने डिफाइन किया है, आई वांट दैट इफेक्ट हियर. विद दैट इफेक्ट मुझे स्पेसिफिक जो एलिमेंट्स है उसको कुछ अलग स्टाइल अप्लाई करना है एज अ रिक्वायरमेंट ओनली फॉर दिस पेज. तो हम क्या कर सकते हैं? ओके, सो एज यू आर सेइंग, यहाँ पे मैंने स्टाइल में आई एम राइटिंग कलर पर्पल. But then my question is, for H1 inline CSS is saying a purple color, external is defining aqua color. तो कौन सा इफेक्ट लेगा? Inline or the external one? Preference will be given to the inline CSS. क्यों? क्योंकि आपने अभी स्पेसिफिक टैग के लिए यहाँ पे उस एलिमेंट के लिए यह मेंशन द स्टाइल कलर एज पर्पल. सो ये प्रेफरेंस अभी इनलाइन को दिया जाएगा बिकॉज मे बी दैट इज योर रिक्वायरमेंट फॉर दैट करंट पेज. सो एज अ होल पेज प्रोजेक्ट कंप्लीट CSS यहाँ पे डिक्लेयर्ड है. आई वॉन्ट मेजोरिटी ऑफ दैट पोर्शन, 80%, 90%, मुझे वहाँ से ही स्टाइल लेना है. सेम स्टाइल्स मुझे अप्लाई भी करने हैं. बट देन समहाउ ये मेरा रिक्वायरमेंट है कि फॉर ओनली दिस सिंगल पेज यहाँ पे मुझे कुछ अलग स्टाइल इफेक्ट चाहिए फॉर सम रीजन. गेटिंग इट? तो इस केस में हमने यहाँ पे दोनों डिक्लेयर किया है. H1 के लिए स्टाइल जो डिक्लेयर किया इट इज अ इनलाइन पैटर्न, और अदरवाइज यू कैन राइट इंटरनल थ्रू आउट द पेज. आपको H1 पर्पल में चाहिए तो आप इंटरनल भी लिख सकते हैं. सो इट इज ओवरराइडिंग योर एक्सटर्नल CSS, करेक्ट? तो इसका इफेक्ट आप देख सकते हैं. बाय डिफॉल्ट H1 is defined with aqua color, but when you will run this page you will see the H1 in purple color. So this is my H1 element. ये H1 अभी पर्पल कलर में आ गया. गेटिंग इट? तो ये ओवरराइड हो रहा है एंड दैट कैन बी माई ओन रिक्वायरमेंट. ये मेरा खुद का रिक्वायरमेंट है एंड दैट इज वाई आई एम सेटिंग अप द एडिशनल inline CSS also. External भी है मेरे पास, but we are also setting up the inline. Is it clear? So always the preference, first preference is given to the inline. अगर आपने inline लिखा है तो जो inline में डिक्लेयर किया है वही इफेक्ट आप देखेंगे. If it is not there, अगर आपने inline नहीं लिखा है तो second preference is for the internal. Whatever is defined in the internal CSS, it is for the current page. तो वो इफेक्ट लेगा. And the third preference will be given to the external. Understanding the reason as well? So please try this out. आपके सबके पास ये दो पेजेस है ही, करेक्ट? We already have this CSS. We have this demo2.html. So आपको बस यहाँ पे H1 को inline CSS मेंशन करना है. Are we done? You can also try with the internal CSS. मैंने यहाँ पे inline का एग्जाम्पल दिखाया है. You can also try the internal one.
quickly do that, and then we are going to move to the next topic. Sorry. Are we done? Now please create a new folder. राइट क्लिक करके यहाँ पे नीचे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सिलेक्टर्स. ये टॉपिक है हमारा CSS सिलेक्टर्स. So I'm creating a new HTML file जहाँ पे हम कुछ बेसिक CSS प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं. बिकॉज टू लर्न द सिलेक्टर्स आई नीड टू शो यू डिफरेंट बिहेवियर्स. अभी तक हमने सिर्फ कलर, टेक्स्ट कलर देखा ना. सो वी आर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल बेसिक CSS प्रॉपर्टीज. कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देखेंगे. So just pay attention. H1 tag है यहाँ पे. I'm just writing basic CSS properties. Very basic apart from color. Text color तो हमने देखा कैसे change करना होता है. But we also need to know some additional properties. My bad. H2 करते हैं. This is the header with background. Paragraph 1 and paragraph with a different font size. So basically we are going to understand color जो हमने पहले देखा ही already. Then we are going to set up some background. So background color setup करने वाले हैं text के लिए. Then we are going to understand what is the default font size and how to change that font size. ये तीन ही properties हम देखने वाले हैं. बाकी के properties हम बाद में देखेंगे. But initially we need to start with the selectors. I would prefer the internal CSS. External project के लिए हम use करते हैं internal CSS क्योंकि हर एक पेज में हम कुछ ना कुछ नया टॉपिक देखने वाले हैं. सो इट शुड नॉट बी दैट कि मेरे पास बहुत सारे एक्सटर्नल CSS है तो कौन सा कहाँ पे लिंक हो रहा है, वी माइट गेट कंफ्यूज्ड. सो आई एम प्रेफरिंग द इंटरनल CSS. तो यहाँ पे स्टाइल H1 का कलर आई वांट टू सेटअप एज रेड कलर. तो हेडर 1 जो हमने एलिमेंट यूज किया है उसके लिए रेड कलर आ जाएगा. फॉर H2 मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेटअप करना है. सो बैकग्राउंड कलर लेट्स से इट इज अ येलो कलर. एंड फॉर पैराग्राफ, नो अभी ये दोनों पैराग्राफ को अप्लाई होगा. सो बिफोर अप्लाइंग दिस एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस आई विल शो यू द आउटपुट कि फॉन्ट साइज क्या होता है और कैसे होगा.
फाइल, so आपका पैराग्राफ का फॉन्ट साइज बहुत ही छोटा है विद कंपैरिजन टू द हेडर्स। H1 के लिए यहाँ पे टेक्स्ट कलर आ गया, H2 के लिए बैकग्राउंड कलर आ गया, टेक्स्ट कलर वही है ब्लैक, नो चेंज इन दैट। हमने वहाँ पे कुछ स्टाइल मेंशन ही नहीं किया है कि टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए। सो डिफॉल्ट इज ब्लैक, तो आपका H2 अभी भी ब्लैक कलर में ही है, बट द बैकग्राउंड इज सेटअप एज येलो। क्लियर विद दिस? नाउ जस्ट ऑब्जर्व ये पैराग्राफ का डिफॉल्ट साइज क्या है, एंड वंस आई चेंज इट, how does it work? So I'm going to write font size as, let's say, 30 pixels. Can you see the difference? So ये basic तीन properties हमने अभी तक सिर्फ color देखा था, but we also need to know with some additional properties कि आप कैसे manipulate कर सकते हैं। So background color will set up that background color for that element. Font size आपके text का size define कर रहा है। सो डिफॉल्ट साइज ओवरराइड कर रहे हैं हम लोग, जैसे डिफॉल्ट कलर हम चेंज कर रहे थे, सेम वे नाउ वी आर चेंजिंग द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। यू कैन डू दिस फॉर एनी एलिमेंट। ये समझा आपको? सो फर्स्ट राइट द HTML पार्ट। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, नो वरीज। In the body section, write the header 1, header 2 and a single paragraph tag. Pick CSS properties, that is what you want. Others have we done? HTML part हो गया। CSS में हमने एडिशनल दो प्रॉपर्टीज देखे हैं, अलॉन्ग विद कलर वी आर सेटिंग अप दी बैकग्राउंड कलर एंड द फॉन्ट साइज। इज दैट पार्ट क्लियर? डन? आपका भी हो गया सिद्धांत? यू डन? अनिकेत आपका ये पार्ट हो गया। नाउ कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग मतलब क्या? CSS है ना। सो स्टाइल शीट तो हम लोग को समझ में आ गया दैट वी आर डिफाइनिंग सम स्टाइल। सो .css इज माय स्टाइल शीट, वी आर अप्लाइंग सम स्टाइल्स। कैस्केडिंग का मतलब क्या है? ओके, सो फॉर दिस H1 अगर मेरा बहुत बड़ा CSS है, मान लो कि एक्सटर्नल CSS है और ये बहुत बड़ा है, एंड समवेयर विथ सम इंटेंशन या फिर गलती से मैंने H1 को रिपीट किया। सो इन दैट केस यहाँ पे मैंने कुछ और प्रॉपर्टीज डिफाइन किए हैं, तो कौन सा CSS यहाँ पे फाइनली आपको दिखेगा, H1 के लिए कौन सा कलर आएगा। यहाँ पे मैंने रेड लिखा है एंड हियर आई वुड बी मेंशनिंग द कलर एज ब्लू। So you can see immediately the color will be blue. Cascading का मतलब होता है सिंपल इंग्लिश है चेनिंग। सो इट गोज सीक्वेंशियली, आपका स्टाइल शीट हमेशा सीक्वेंशियली ही जाता है। फर्स्ट इज दिस स्टाइल दैट वी हैव मेंशन्ड, वी हैव मेंशन्ड H1 में कलर रेड,
H2 बैकग्राउंड येलो, P टैग के लिए फॉन्ट साइज 30, H1 टैग के लिए कलर इज ब्लू. इट गोज सीक्वेंशियली. तो पहले हमने H1 के लिए रेड कलर मेंशन किया था, बट नाउ वी आर ओवरराइडिंग इट. तो इवन इन दिस वे ऑल्सो वी कैन से कि ये कैस्केडिंग कर रहा है, चेनिंग कर रहा है, सीक्वेंशियली जा रहा है, एंड अकॉर्डिंगली द स्टाइल इज डिफाइंड. उस हिसाब से वो स्पेसिफिक कलर अप्लाई कर रहा है, फिर स्पेसिफिक स्टाइल्स अप्लाई कर रहा है. यस, ओवरराइड करता है या फिर अपडेट करता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कैस्केडिंग इफेक्ट, चेनिंग इफेक्ट. इज दिस पार्ट क्लियर? इफ इन केस इट हैपन्स सो, अगर ऐसे हुआ तो फिर आपको जो फाइनल इफेक्ट है वो मिलेगा, द लास्ट वन सीक्वेंशियली. इज दिस क्लियर? तो हमने ये पॉइंट लास्ट टाइम नहीं देखा था कि कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है. सो आई होप नाउ इट इज क्लियर. सेम इज द रूल विथ जो हमने देखा था अभी, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनलाइन. सो इनलाइन इज गेटिंग मोर प्रेफरेंस. अगर इनलाइन नहीं है, इंटरनल है, तो इंटरनल को प्रेफरेंस होगा, अदरवाइज वॉट एवर इज डिफाइंड इन द एक्सटर्नल. तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझे, कलर, बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट साइज. हमने और कुछ देखे नहीं ये प्रॉपर्टीज.